Hello, students. My name is Dinesh Ahrao. I am working as an assistant professor of political science in University of Delhi from last 5 years. And today in this lecture, I am going to discuss the strategies or ways to read the Hindu as a newspaper, right? So, before you, watch this video, I will, request you to watch one more video which we have already put on our website, wherein I have spoken about how to prepare for current affairs. Like what should be the strategy, correct strategy for current affairs. So you go through that, wherein I have also spoke about the importance of newspaper, like reading newspaper, right? So let's start, right? So again, before I discuss each and every topic of published in today's Hindu, let me briefly tell you about two things. First is why newspaper is important, and second is which newspaper to be read, and third is how many newspapers we are supposed to read, right? These are the three questions, right? So first is which newspapers to read. So now reading which kind of newspaper will suit which kind of candidate is it's absolutely a personal decision. That's what I feel, right? There are two newspapers which basically candidate, those who are preparing for civil services, they are aware. Like you guys must be aware about two newspapers. One is the Hindu and second is the Indian Express. Like, so most of the students get confused between which newspaper of the Hindu, whether we should go for the Hindu, whether we should go for the Indian Express, or whether we should read both, right? So according to me, like, you can read any one of these two papers. लाइक दोनों में से आप किसी भी एक न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो, ठीक है? बिकॉज मोर और लेस, what is important while newspaper reading is are issues. Like the issues are the most important things. Like news तो ज़्यादा मैटर नहीं करती है, ठीक है? वॉट मैटर्स इज इशूज, वॉट आर द इशूज, राइट? और इशूज दोनों न्यूज़पेपर में सेम, मोर और लेस सेम रहेंगे, ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि द हिंदू पढ़ोगे तो आप कुछ मिस कर रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस में से कुछ कुछ मिस कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? दोनों में से एक न्यूज़पेपर आप चूज कर लो, एंड आई लीव इट अप टू यू. इफ यू आस्क मी, आई विल प्रेफर द हिंदू, राइट? And second is about whether I should read the Indian Express as well, ठीक है? So I will not suggest that. See, point is current affairs is important, ठीक है? Newspaper reading is important, right? But I have seen that candidates give disproportionate importance रीडिंग न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है यू विल go on reading newspaper for 3 or 4 hours. Don't do that, ठीक है? You have to do cost benefit analysis, right? Current affairs के साथ साथ you have to devote your time to other part of your syllabus as well. You have to prepare for optional subject, you have to prepare for essay, so on and so forth, right? So do not, newspaper important hai, lekin do not spend disproportionate amount of time on reading newspaper. More or less, if you ask me, more or less you can spend 1 hour or 1.5 hour on reading newspaper, okay? And precisely because of this, I am telling you to go and watch that video wherein I've spoken in detail about how much time we should spend on reading newspaper, कौन से sources है current affairs के, so on and so forth, right? So in this lecture, I limit myself to how we should read newspaper, which are the issues upon which we should focus, right? ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ. So before I start, ठीक है, if I just want to clarify that there is difference between the way layman you reads newspaper, the main academicians and journalists read newspaper, and the civil servant aspirants should read the newspaper. There is difference. Understand this. ठीक है? Common person, if you give the Hindu to common person, more or less he might focus more on political, he or she might focus more on political news, or sports related news, or entertainment related news, so on and so forth, right? Because he's not preparing for any particular examination. Whereas if there is an academician, he wants to prepare for or he want to do some research, or he want to prepare for some entrance examination for say MPhil or PhD, so her way of reading newspaper will be different. And third is civil servant aspirant, right? So you have to understand that as a civil servant aspirant, you are supposed to focus only those issues and aspects which are important from the perspective of examination only, right? Fine. Why? Because you're preparing for a particular examination, and UPSC has every exam, or every exam has its own approach, it has its own demand. So understand the demand of civil services examination, then only you will understand how to read newspaper, right? Now, how to understand the demand of the examination, right? So which are the issues we should focus upon. Now, in order to understand this, you have to do two things.
First is go through the syllabus. Syllabus of both prelims and mains. Right? Look at the syllabus. Okay. Now, if you go through the syllabus, it will help you in sort of differentiating what is important from what is not important. It will help you to differentiate from what is relevant as far as civil services examination is concerned and what is not relevant. All right, fine. So go through go through the syllabus. Second thing, go through the previous year question papers as well, both prelims and mains. Then you will it will also help you to understand which are the issues of current affairs which we should focus upon. Right, whether we should focus on judgments of Supreme Court, whether we should focus on various government schemes and programs, so on and so forth. Right. So going through syllabus and going through previous year question paper is the most important thing before you start your preparation. Like, understand this. Don't straight away take the Hindu and start reading about the Hindu. Why? Because then you will not understand. You will not know what is important and what is not important, what is relevant and what is not relevant. ठीक है, तो ये दो चीजें करो. एंड आई सपोज आई मीन दिस इज फॉर द बिगिनिंग. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर द बिगिनर्स. ठीक है, सो प्लीज गो डू दिस थिंग्स एंड देन based on your own comfort zone, based on your own level of understanding, you can choose either the Hindu or the Indian Express, and don't go for both. Just read one. Just limit yourself to one particular newspaper because you don't have time. ठीक है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप दिन में 4-5 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ोगे. एक न्यूज़पेपर चूज करो एंड आई लीव इट अप टू यू. इट शुड बी योर पर्सनल डिसीजन. इफ यू आस्क मी, आई विल से द हिंदू. ठीक है, बट दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन. सम टीचर्स और सम इंस्टीट्यूशंस माइट टेल कि अभी द हिंदू खराब हो गया है, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एवरीबडी हैज देयर ओन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट. ठीक है, माय इंडिविजुअल ओपिनियन इज इन फेवर ऑफ द हिंदू. यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन. So let's start. So this is the newspaper which is published today, 4th of February 2021. Right, so let's discuss. Now the first news which has been published is about massive gathering in Haryana demands repeal of farm laws. Now suppose you are a beginner. This is the first day of reading the newspaper. Okay. So before I proceed, I have already told you that while reading newspaper, focus on issues. Focus on issues rather than news. Now this is news that massive gathering in Haryana demands repeal of farm laws. There is a protest, farmers are protesting and they are demanding repeal of farm laws. Now this is the news. कितने लोग जमा हुए, महापंचायत हुई, so on and so forth. What is the issue here? Issue here is farm laws. So while reading newspaper, you should focus on issues. That this particular issue, know what is the issue, why farmers are protesting, what are the salient provisions of farm laws, which are the farm laws which about which the farmers are protesting, what is the government view, what government is saying, so on and so forth. So you should focus on those issues. Okay, fine. Okay, so if you read this news. Now this news is, if you ask me, this news is important as far as examination is concerned, and especially from mains perspective. For prelims, it is not that important, but for mains perspective, why? Because in mains we have, in paper GS paper 2, we study about pressure groups, right? Pressure groups. Then we also study about agriculture market in GS3, right? Reforms in agriculture, so on and so forth. So from these two as perspective, this particular news is important and you are supposed to read this. Okay, but if you look at this news from information perspective, there is not much in this. It is just telling you about the status and what is what are the views of farmers leaders, that okay fine, हम लोग जो है अक्टूबर तक जो है हम लोग कंटिन्यू रखेंगे प्रोटेस्ट को, so on and so forth. Don't focus on that. While reading about this particular news, you should focus on what are the strategies, what are the ways used by various pressure groups such as farmers organizations. कौन से methods use किए हैं. ठीक है, if you go through previous year question papers, general studies paper 2, there are questions that what are the methods used by farmers organizations and how far farmers organizations of farmers group have been successful in meeting their achieving their demands. Right, these were the questions. So you should look at this particular news from that particular perspective. Okay,
अब इसमें फार्म लॉस क्या है क्या नहीं है वो आपको पता नहीं चलेगा. सो फॉर दैट यू हैव टू यू नो गो थ्रू द बैकग्राउंड. यू शुड गो थ्रू. अगर आप पहले दिन पढ़ रहे हो आपको पता नहीं फार्म लॉस क्या है, तो आप जो है फार्म लॉस को सर्च करो कि क्या है, व्हाट आर द फार्म लॉस, व्हाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग. ठीक है. और आई विल सजेस्ट दैट जस्ट वेट. अगर पहले दिन है, बिगिनर्स हो, तो डोंट स्ट्रेट अवे स्टार्ट यूजिंग इंटरनेट बिकॉज इट विल वेस्ट योर टाइम. जस्ट वेट एंड बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे इससे रिलेटेड, बहुत सारे एडिटोरियल्स आएंगे और उसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा कि है क्या इशू. ठीक है. So next is government. So this news is important, right? This news is important. Government notice to, but it is as far as note making is concerned, you will not get much content in that. Okay, fine. Now government notice to Twitter on farmer genocide hashtag. Now at the outset, you will feel that this news is again political, right? But this is not political. You know why? Because this news is talking about Section 69A of Information Technology Act 2000. And again, if you go through the previous year question papers, there was a question on Section 69A of Information Technology Act 2000. So that's why I've told you at the beginning that before starting to read or before starting the preparation for civil service examination, it is very important for you to go through the syllabus and also through the previous year question paper. Because अगर आपने previous year question paper देखे तो the moment you see this section 69A of 2000, you will realize that yes, this is an important article and I should focus on that. ठीक है. Fine. Now what is an issue? Issue क्या है कि ये ट्विटर को गवर्नमेंट ने जो है वो ऑर्डर दिया कि ये जो फार्मर्स जीनोसाइड हैशटैग जो हो रहा है, इट इज़ बेसिकली इट इज़ हार्मिंग इंडियाज इमेज इन ग्लोबल एरेना. सो दैट्स व्हाई इट सेज दैट यू शुड टेक डाउन दोज ट्वीट्स एंड दोज दैट हैशटैग. फाइन. ठीक है. So what are the provisions of Information Technology Act 2000? So you should go and search for Section 69A of Information Technology Act. और इसमें लिया हुआ है, देखो, false information इसमें लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 69A क्या है. ठीक है. You see, I'll read for you. See, Section 69A empowers government to take action against those who are spreading misinformation. ठीक है. And which has potential to imminent violence affecting public order situation in the countries, right? So on this power, on the basis of 69A of Information Technology Act, government has ordered the Twitter to take away the content which can lead to law and order problem, right? So these are the issues. हाँ. ठीक है. ट्विटर को इशू किया है, फेसबुक को इशू किया है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किस एक्ट के अंदर किया गया है, कौन से सेक्शन के अंदर किया गया है, क्या हो सेक्शन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगेन अनदर इशू इज अबाउट freedom, like privacy or right to freedom, right to internet, right? In Supreme Court, in one of the high courts, in one of the judgment, it said that right to internet is a fundamental right. Right. So if you are taking out my tweet, then you are violating my right to internet, which is an integral part of Article 21, right to life and personal liberty. So these are the issues about which you can think when you read about this particular actor. But again, Indian Constitution gives you freedom, right? We have freedom of speech and expression. We have right to freedom, right? But that freedom is not absolute. Right? The government or the legislature can impose reasonable restriction on the freedoms which we enjoy under the constitution. So these are the issues. ठीक है. तो आप हमेशा आपने इसके ऊपर फोकस करना है कि फाइन, ये इशू क्या है. इस इशू में दो व्यूज है. एक है ऑपोजिशन का व्यू, ठीक है, एक है क्रिटिकल व्यू, दूसरा है व्हाट इज द गवर्नमेंट्स व्यू. ठीक है. एंड एज एन एस्पिरेंट who wants to be a part of government, you should focus more on what is the perspective of government. You should learn to defend the government. Now having said that, defend करना है इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही है, गवर्नमेंट जो कर रहा है सब कुछ सही है. नहीं, ऐसा नहीं है. UPC does not want that. UPC do not want robots or machines who cannot think critically or who do not have questioning attitude. ऐसा नहीं है. If you look at the type of questions UPC asks, the questions are critical in nature. But yes, you should criticize government. You can criticize government. You can criticize policies and programs. But that criticism should be constructive, number one, and that criticism should be balanced.
it should be well informed, ठीक है, and at the outset you should more or less your balance of opinion should tilt towards the government. Why? Because you're preparing for an examination which will enable you to become a part of administration, ठीक है. तो आपका जो सोच होगी, आपकी जो थिंकिंग होगी, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, इट विल बी मोर फेवर in terms of government, right? What government is doing. And here is the caution I want to tell you. The Hindu is little critical. Sometimes it goes to the extreme because it has a particular ideological bias, left towards left. It is more leaning, it leans towards the left, ठीक है. So I want to caution you कि जब आप द हिंदू पढ़ोगे तो इतना critical perspective मत होना जो द हिंदू लेता है, ठीक है. Why? Because द हिंदू is a part of media. And media का काम ही है democracy. The media is a watchdog of democracy. So it's the job of media or journalists to expose weaknesses or to criticize the government. But at the same time, it is not job of the future aspirants who wants to become a part of administration to solely focus on criticism. Right? So herein lies the difference. That's why I told you at the beginning that आप किसके लिए prepare कर रहे हो, कौन से exam के लिए prepare कर रहे हो, it will decide how to read newspaper. अगर आप academicians हो, academics में interested हो, then you can be critical, right? If you are journalist, then you have to expose weaknesses. But if you are preparing for civil services, you should understand about the issues, but at the same time you should learn, or you should know about the government's views, and you should try to defend. यस, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी कहीं ना कहीं एक सही है, ठीक है. हाँ, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है, देन ऑब्वियसली यू कैन से दैट बट बिफोर अराइविंग एट कंक्लूजन ये शुड गिव सर्टेन सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स टू डिफेंड योर व्यूज, राइट. फाइन. सो ये दो न्यूज जो है वो हमने देखा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, अब ये देखो, ये छोटे ना, इंटरनेट ये नॉट रिस्टोर्ड एट दिल्ली बॉर्डर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये पढ़ो मत, ठीक है. इंडिया फ्लेस कमेंट्स बाय सेलिब्रिटीज, इसको छोड़ो, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल न्यूज है ना, ये पॉलिटिकल न्यूज है, ठीक है. सी पॉइंट इज आपको क्विक रहना है, क्विकली आप उस न्यूज में यू डोंट हैव टू इनग्रॉस योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर न्यूज, आपको क्विकली आगे बढ़ना है, ठीक है. नो इनफॉर्मल टॉक्स विद फॉर्मल यूनियंस. गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम इनफॉर्मली बात नहीं करेंगे, बात करना है आप ऑफिशियल मैकेनिज्म है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, वहां पे आइए, हम वहां पे बातचीत करेंगे, इनफॉर्मल बात नहीं करेंगे, बस खत्म, यही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें. नेक्स्ट. नाउ ये क्या है, अमेजॉन सीईओ जेफ बेजोस टू स्टेप डाउन. ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस. स्टेप डाउन कर रहा है नहीं कर रहा है, हमको कुछ नहीं करना है उससे, ठीक है. हाँ, यहां पे दो है, देखो, साइकिया रीइंस्टेटेड as Assam leader of opposition. Now यहाँ पे this news is at the outset you will feel कि ये important नहीं है, but this news is important from the perspective of procedure of the parliament. कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर किस तरह से फंक्शन करता है, व्हाट इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हाँ, हाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू बी इलेक्टेड और टू बी नॉमिनेटेड एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नॉट इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एज एन इलेक्टेड एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन. रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी सीट्स होने चाहिए ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है. तो ये सारी इश्यूज जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज या इश्यूज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, वो चीजें आप इस न्यूज में आपको पढ़ेंगे. आई विल डिस्कस दिस व्हेन वी डिस्कस पेज 4. देन ये है, लेजिस्लेचर पैनल्स कैन समन witness. Again, this is very important because it is related to the powers of committees of the legislature. ठीक है. If you look at your syllabus, parliament, committees, so on and so forth, ये सारा syllabus में, ठीक है. So this news becomes very relevant about powers of the committees. ठीक है. Next, Bihar government won't hire protesters. ठीक है. अगेन यहाँ पे भी सिविल लिबर्टीज का इशू है, दैट गवर्नमेंट इज सेइंग दैट इफ यू पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट एंड इफ द चार्जशीट इज फाइल्ड अगेंस्ट यू, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कॉन्ट्रैक्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. लाइसेंस नहीं मिलेगा फायर आर्म के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. नाउ अगेन यहाँ पे इशू क्या है कि भाई, हाउ द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल are being violated and are being impinged upon by this draconian order of the Bihar government. ठीक है. But at the same time, मैंने बोला ना ये criticism है, ठीक है, ये opposition point of view है. At the same time, what is the point of view of Bihar government? Why it has done so? ठीक है. क्यों ऐसा किया है? Because there are so many criminal elements. They enter into protest sites and they create ruckus and they destroy public property. They indulge in violence. So there somewhere down the line, government should have
some kind of power. There should be some mechanism of deterrence to prevent these unruly members of the society from indulging in violence. So ये दो perspective है, ठीक है. Fine, democratic rights are important, but at the same time you have right to protest. Article 19 clause 1 gives you freedoms, 6 sets of freedom, right? But the same article says that your freedoms are not absolute, right? Your freedoms are not unqualified. Your freedom which you enjoy, they are qualified. They can be limited, you know, and so government can impose limitations. The point is whether this particular limitations or imposition on or limitation on freedoms, is it reasonable or not? You should focus on that. Okay. So this is important from polity GS2 perspective, the democratic rights वर्सेस पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. वेदर इट इज लीडिंग टू ऑथोरिटेरियनिज्म, है ना. ये सारे बोल रहे कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, लोगों को ये तो मुसोलिनी और हिटलर का जमाना टाइप आ गया, ठीक है. तो ये ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ने ये चीज बोली है, ठीक है. बस फोकस करो, इश्यूज क्या है, सिविल लिबर्टीज, फंडामेंटल राइट्स एंड वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड व्हाट इज द रीजनेबलनेस, लाइक वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग इज रीजनेबल और नॉट, ठीक है. ये इश्यूज है फ्रॉम GS2 पर्सपेक्टिव, ठीक है. फाइन. नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरवीन इन कन्वर्जन लॉस. तो यहां पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज, सुप्रीम कोर्ट से वी वोंट इंटरवीन इन दिस कन्वर्जन लॉस. तो यहां पे आपको देखना है कि कन्वर्जन लॉस क्या है, ठीक है. what are the anti conversion laws? लव जिहाद का इशू, that's the issue. क्या it does the anti conversion issues goes against the spirit of secularism in India? Does it violate the freedom of religion which has been guaranteed under article 25 of the constitution? These are the constitutional issues upon which you should focus. And supreme court ने क्या बोला कि हम interfere नहीं करेंगे, आप पहले high court के पास जाइए, we want to know the views of high court and then you come to us. That's what Supreme Court said, ठीक है. सो यहां पे इशू इंपॉर्टेंट, न्यूज क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया इंटरवीन करने के लिए, लेकिन यहां पे इशू क्या है, इशू इज अबाउट विच इशू इज इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन, हाँ, एंटी कन्वर्जन लॉज, ठीक है, विच हैव बीन पास बाय यूपी एंड उत्तराखंड, ठीक है. फाइन. देन नेक्स्ट इज अ लेपर्ड दैट चेंज इट्स स्पॉट. यू नो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यू विल फील कि हाँ यार ये न्यूज बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, चलो इसको पढ़ लेते हैं. बट लेट मी कॉशन यू, while reading newspaper there are many news in which we feel interest. For example, sports में मजा आता है, स्पोर्ट्स पढ़ने में, एंटरटेनमेंट में बहुत मजा आता है, ठीक है, और ये ऐसे स्टोरीज में अच्छा लगता है. बट अंडरस्टैंड दिस, यू आर नॉट अ कॉमनर. देयर इज अ रीजन यू आर रीडिंग द हिंदू. व्हाई? बिकॉज यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एंड यू हैव टू क्लियर इट. Your requirement is different than the layman, ठीक है. So you have to exercise certain control on you, है ना. You should not get enticed by these stories and this kind of news, entertainment news. Control करो अपने आप को, सीधे इसको काट दो. No, it is not required. It is not important. In Jamia, police should have shown restraint. Again, it is not important, ठीक है, कि पुलिस ने मारना नहीं चाहिए था. Again, civil liberties, police atrocities, so on and so forth, ठीक है. यही इशू है, बाकी इसमें कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है. सेकेंड पेज. अच्छा, और एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम कहां से स्टार्ट करें, हाँ, पहला पेज से स्टार्ट करें या एडिटोरियल से स्टार्ट करें, ठीक है. नाउ आई विल अगेन, दैट शुड बी योर पर्सनल डिसीजन, ठीक है. दैट शुड बी योर पर्सनल. कुछ लोगों को लगता है कि पहले कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सीधे एडिटोरियल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. कुछ स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स लास्ट पेज से स्टार्ट करते हैं. आई लीव इट अप टू यू, ठीक है. बट आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट विथ फर्स्ट पेज, ठीक है. फर्स्ट पेज से स्टार्ट करो, उसके बाद में इट्स अप टू यू, ठीक है. बिकॉज मोर और लेस एडिटोरियल्स जो आते हैं वो कहीं ना कहीं फर्स्ट पेज में या कोई कंटिन्यूसली कोई चीज न्यूज में है उसी पे ऊपर आते हैं. तो इट्स गुड, इट विल बी बेटर इफ यू रीड फर्स्ट पेज फर्स्ट एंड देन इट्स अप टू यू, ठीक है. सिटी पेज, नाउ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू दिल्ली सिटी, ठीक है. और ये हर एक सिटी पेज जो है वो अलग होता है. जैसे महाराष्ट्र में, बॉम्बे में अगर द हिंदू है तो उसका सिटी पे जो है जो पेज होगा वो अलग होगा. तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. जो जस्ट क्विकली गो थ्रू इट. आप गवर्नमेंट इश्यूज लिस्ट ऑफ 105 नॉट इंपॉर्टेंट. पुलिस टू असेंटर लोकेशन और नॉट इंपॉर्टेंट. कैश रिवॉर्ड अनाउंस फॉर इंफॉर्मेशन ऑन डीप, नॉट इंपॉर्टेंट. कंप्लीटली टू एक्टिविस्ट गेट समन्स ओवर ट्वीट्स. अगेन यू नो, दिस इज रिलेटेड टू सिविल लिबर्टीज, इंपॉर्टेंट नहीं है. बस आपको समझ लो कि हाँ यार एक्टिविस्ट है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का इशू है, बस वो है, बाकी कुछ नहीं है कि समन किया क्या किया, जो भी है, ठीक है. 4 केसेस लॉज, नो, नॉट इंपॉर्टेंट. एनजीटी बिल्ड वाटर हाउसेस ऑन प्लेटफॉर्म्स फॉर सीमेंट बैग्स. नाउ दिस
तो इसमें आपको एक इसके ऊपर फोकस करना चाहिए आपने कि व्हाट इज एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है, बिकॉज इट्स मेंशन इन यूपीएससी सिलेबस दैट रेगुलर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है, अलग अलग बॉडीज के बारे में आपको पढ़ना है जीएस पेपर 2 मेंस. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट एनजीटी बिकम्स इंपॉर्टेंट. देन दिस क्वेश्चन इज अबाउट एयर पोल्यूशन, ठीक है. अगेन इफ यू लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग, ठीक है. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट, बट दिस इज नॉट मच. ये न्यूज में क्या है कि भाई किस तरह से सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है वो एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसको हम एयर पोल्यूशन को किस तरह से रोक सकते हैं. एनजीटी ने ऑर्डर दिया कि ये जो सीमेंट बैग है उसको यू टेक केयर ऑफ द पोल्यूशन ड्यू टू सीमेंट बैग, ठीक है, उसको किस तरह से आपको रखना है, वो चीज है, ठीक है. तो एनजीटी क्या है, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एनजीटी, इज एनजीटी परफॉर्मिंग इट्स फंक्शंस इन इफेक्टिव मैनर. इस चीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस करो, ठीक है. कौन सा एक्ट है, कौन सा एक्ट पास किया गया था, ठीक है, कब पास, उसका चेयरपर्सन कौन होता है, जज होना चाहिए, हाईकोर्ट का होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है आप गूगल कर सकते हैं क्विकली. एनजीटी के बारे में 2 मिनट पढ़ लिया, डन, ठीक है. डू नॉट गो, देखो, वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर वी शुड यूज इंटरनेट, ठीक है. हो सकता है बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, बहुत सारे कीवर्ड्स है जिसके बारे में हमको पता नहीं है, ठीक है, ठीक है. सो आई विल सजेस्ट फॉर बिगिनर्स, जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ, don't look every issue on internet, don't check about every issue on internet, because उससे क्या होगा, आपका समय बर्बाद होगा. थोड़ा कंट्रोल करो, आराम से, धीरे धीरे 1-2 महीने में वही चीजें रिपीट होगी, ठीक है. जैसे फार्मस लॉ से 2.5 महीने से वही चीज बार बार आ रही है, तो आपको उसके अंदर डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग एडिटोरियल से आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है, फाइन. Next, frontline workers to get jab. ये not, this is not important. Civic body to get civic body not giving dry rations in school. Now this is important. Civic body, this question is about municipalities. 74th Constitutional Amendment Act provided constitutional status to municipalities, and the second question is about dry ration in schools, meaning this question is about PDS, problems in PDS, public distribution system, and about Sarva Shiksha Abhiyan, ठीक है, करप्शन एट स्कूल लेवल, करप्शन इन दिस पर्टिकुलर स्कीम, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. तो इन दैट से, तो ये हो गए इश्यूज, ठीक है. हाँ, सो फोकस ऑन दोज इश्यूज, दैट्स इट. कि ड्राई रेशंस दे नहीं रहे, डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम पीडीएस टू मार्केट. हाँ, पीडीएस के लिए जो धान आता है, जो फूड ग्रेन्स आते हैं, उसको बेच देते हैं. सो दैट्स एन इशू, दैट्स अ करप्शन, ठीक है. फिर ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज एयर क्वालिटी में इंप्रूव टुडे. कोई लेना देना नहीं है हमको, बस ये है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसको नोट डाउन करो कि हाँ यार ये रेगुलेटरी बॉडी है, इसके क्या क्या पावर्स और फंक्शंस है, या वॉट एवर इट मे बी, ठीक है. फिर से नेक्स्ट इज कीप टैब्स ऑन क्लियरेंस कंडीशन फॉर प्रोजेक्ट्स, एनजीटी. नाउ अगेन दिस सो एनजीटी इज इन न्यूज, so you can expect some questions on NGT. I am not assuring you, but आपको आ सकती है हाँ यार NGT जो है आज न्यूज में आया, बहुत हर महीने 3-4 बार NGT न्यूज में आते रहता है, तो you should know about NGT, ठीक है. NGT एक्ट कौन सा है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या पावर्स है, फंक्शंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. एंड व्हाट आर द रिसेंट इश्यूज, ठीक है. PIL in High Court for salary payments, medical facilities to sanitation workers, ठीक है. आपने देखा होगा सैनिटेशन वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग इन दिल्ली, एंड दैट्स व्हाई जो कचरा विचरा उठ नहीं रहा है, बहुत गंदगी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज दे हैव नॉट बीन गिवन सैलरीज फॉर 2-3 मंथ्स, ठीक है. सफाई कर्मचारी जो है वो इस पे चले गए स्ट्राइक पे, तो हाई कोर्ट में PIL फाइल किया है इसके इश्यूज के लिए, तो ठीक है. तो इसमें क्या है, one issue is about functioning of municipalities, that municipalities are not functioning effectively. Why? Because they don't have funds. उनके पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो इसलिए वो लोग जो है वो सैनिटेशन कर्मचारी है उनको पैसा नहीं दे रहे. दूसरा चीज़ है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है. गवर्नमेंट जो है आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट है, और वहाँ पे MCD में BJP है. सो पॉलिटिकल टसल, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, सो दीज आर द इश्यूज अपॉन विच यू शुड फोकस. दिस पर्टिकुलर न्यूज इज on functioning of municipalities as an institutions, and what are the problems associated with that.
नेक्स्ट इज प्रोटेस्टर्स एट सिंगू बॉर्डर वेलकम ग्लोबल, प्रोटेस्टर एट सिंगू बॉर्डर वेलकम ग्लोबल लेंस ऑन स्टीयर, क्या करना है हमको, ठीक है, बस ये ध्यान रखो कि किस तरह से जो है जो सोशल मूवमेंट्स है या प्रोटेस्ट है, हाउ दे आर बिकमिंग ग्लोबल इन नेचर. So what is the impact of globalization on pressure functioning or working of pressure groups? ठीक है, how globalization has helped the pressure groups. These are the issues we should focus upon. ठीक है, किस देखो आप रिहाना ने टैग किया है, ग्रेटा थनबर्ग ने टैग किया है, ठीक है. So how globalization is helping civil society organizations in in their cause. ठीक है, so ये issue है. Then legislature panels have power to summon witnesses. This is very important because this is related to parliamentary committees. नॉट पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ लेजिस्लेचर. और ये क्वेश्चन जो है ये दिल्ली के कमिटीज के बारे में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. क्या बोला है इसमें, एससी को गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास केस गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट ने क्या बोला है, दैट committees formed by state legislatures or the committees of the state legislatures have power to summon witnesses and enforce their attendance through compulsory process. ठीक है, अगर कमिटी ने कोई इशू पे डेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके लिए अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुलाया, किसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया तो उसको जाना पड़ेगा. Why? Because committees have power to summon the witnesses and enforce the and that going or attending those meetings is it's compulsory. Going in front of committee is compulsory. ठीक है, it's not optional. ठीक है, तो ये है, it is regarding the parliamentary committees or committees of legislature. तो इसलिए ये issue important है. Sorry guys. All right. So next is farmers' voices amplified at citizens' march. Then students groups called for march from Mandi House to Jantar Mantar. Again same farmers लॉस के ऊपर प्रोटेस्ट. ठीक है, अगेन रिपीटेटिव, जस्ट क्विकली जो है क्विकली ग्लॉस ओवर दिस न्यूज और आगे बढ़ो. ठीक है, टाइम पास नहीं करना है. फार्मर्स बीइंग डिनाइड वाटर पावर डीपीसीसी टू लीगल डिपार्टमेंट. अगेन फार्मर्स. अब इसमें एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया है. द दिल्ली कांग्रेस ऑन वेडनेसडे सेड इट्स लीगल एंड ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट बिफोर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. ठीक है, अगेंस्ट दिल्ली यूपी एंड हरियाणा गवर्नमेंट्स एंड द दिल्ली पुलिस कमिश्नर फॉर कटिंग ऑफ वाटर पावर मेडिकल एंड टॉयलेट सर्विसेज टू द फार्मर्स प्रोटेस्टिंग एट दिल्ली ऑर्डर्स बिकॉज दे आर्ग्यू दैट दिस इज कटिंग ऑफ पावर सप्लाई वाटर सप्लाई टू द प्रोटेस्टर्स इज वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, सो नाउ यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बात की गई है. अगेन अगर सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी बॉडीज, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज. ठीक है, ये सिलेबस में मेंशन है. तो सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंपॉर्टेंट है, बट स्ट्रेट अवे डोंट गो एंड स्टडी अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. ठीक है, ये बहुत सारे इश्यूज जो है ये आपके जो आपने अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, वहाँ पे ये अपने आप कवर हो जाएगा. बस आप ध्यान रखो कि हाँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करके एक इंस्टीट्यूशन है और इसके बारे में एक पर्टिकुलर न्यूज़ आया था. ठीक है, इफ यू आर बिगिनर बस इसी के ऊपर फोकस करो. ठीक है, बिकॉज देयर आर सो मेनी इश्यूज विच अबाउट विच यू डू नॉट नो. और वो बाकी जहाँ पे अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे तो अपने आप आपको वो सिलेबस पढ़ते पढ़ते आप आ जाएगा. अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो अपने आप वो सिलेबस में टीचर्स आपको पढ़ाएंगे. सो डोंट वेस्ट योर टाइम रिसर्चिंग ऑन दैट. The next is road occupied by farmers. Again, it's not important. Farmers' voices. 50-year-old serves tea. Not important. हाँ, टी सर्व कर रहा है, क्या कर रहा है, हमको क्या करना है. ठीक है, ensure strict implementation. I mean, as a citizen, you should worry about this. But as a civil servant aspirant, ठीक है, यू शुड नॉट, बिकॉज आपका एक एम है, आपका एक गोल है, उस गोल के लिए आपको काम करना है. अगर आप उसमें सिलेक्ट हो गए देन यू विल बी कैपेबल टू टेक डिसीजंस, टू इन्फोर्स डिसीजंस एंड टू हेल्प द सोसाइटी. ठीक है, तो अभी अपने आप को कैपेबल करो सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. ठीक है, उसके ऊपर फोकस करो. इंश्योर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्राई रेगुलेशंस. ठीक है, अगेन ट्राई इज अ रेगुलेटरी बॉडी. इट रेगुलेट्स the service providers, the telecom service providers, TSPs such as Vodafone and so on and so forth. So it's a regulatory body. TRAI. देखो कितने सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा है हमने आज के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ट्राई, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. सो फोकस ऑन दिस इंस्टीट्यूशंस बिकॉज इट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू सिलेबस और इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, अगर आप देखोगे तो 9 फॉर्म्स बीड फॉर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट. नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप फाइल्स कंप्लीट अगेंस्ट बीजेपी. नॉट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट नॉर्थ एंड ईस्ट. अगेन स्पेसिफिक टू नॉर्थ ईस्ट. साइकिया रीइंस्टेटेड लीडर ऑफ अपोजिशन. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि
किस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो क्यों किया, क्योंकि मिनिमम नंबर क्या चाहिए, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ एमएलएस कितने होने चाहिए, सपोर्ट क्या होना चाहिए. सो व्हाट इज लीडर ऑफ अपोजिशन, who decides who should be leader of opposition, what are the conditions to become leaders of opposition. So these are the issues you should focus upon. Congress to move no trust motion against Lal government. Yes, now this is important as far as procedure of the parliament is concerned. So what is no confidence motion? हाँ, no confidence motion कहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, बट ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एज द केस में बी, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. ठीक है, दैट्स द बेडरॉक ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ठीक है, तो इसलिए अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज दे वांट्स टू मूव, अगेन द इशू इज सेम फार्मर्स लॉ के ऊपर. ठीक है, फाइन. पुलिस ट्राइंग टू मलाइन फार्मर्स, नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, मिसिंग गर्ल्स स्केलेटल रिमेन्स रिकवर्ड फ्रॉम, नॉट इंपॉर्टेंट. आसाम मिजोरम स्कूल डैमेज इन ब्लास्ट, नॉट इंपॉर्टेंट. बस ये देखो कि हाँ किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में एक वायलेंस या इंसर्जेंसी इज अ बिग प्रॉब्लम. तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसके डिमांड्स है, गवर्नमेंट का क्या निगोशिएशन चल रहा है नहीं चल रहा है, इस चीज़ों के ऊपर फोकस करो. ठीक है, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, कोलसे पाटिल से एएमयू स्टूडेंट लीडर्स रिमार्क्स अ मिस्टेक, नॉट इंपॉर्टेंट. क्या है ये? ठीक है, ये दिस इज अ प्योरली पॉलिटिकल ये. ठीक है, Sharjeel again, civil society groups. See, nowadays there are so many news which are coming and उसमें दो एंगल है. एक है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ठीक है, ट्रैम्पलिंग अपॉन द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट. And second is about government, how government calls them as a threat to internal security, how they are indulging in anti-national activities, how they are preaching violence, so on and so forth. So ये दो issues है, बार बार आते हैं. ठीक है, तो इसके ऊपर आपका बैलेंस ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, देन नो कैबिनेट एक्सपेंशन इन राजस्थान सेज गवर्नमेंट, कोई जरूरत नहीं है. प्योरली पॉलिटिकल न्यूज है. कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा ही नहीं होगा, ये कौन किसको मिनिस्टर. अब जो अगर लेमैन होगा ना तो ये न्यूज में इंटरेस्ट लेगा कि यार कौन मिनिस्टर बनेगा, एक्सपेंड होगा तो किसको बनेगा, किसके चांसेस है, कौन किसको मिनिस्टर से हटाया जाएगा. एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट आई डोंट केयर अबाउट हु विल बिकम मिनिस्टर और नॉट. एज अ सिटीजन आई माइट केयर, बट एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट आई शुड नॉट केयर अबाउट दिस. ठीक है, डीसीपी फाइल्स क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट अर्नब वाइफ, नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, किसके अंडर फाइल किया है, क्या इशू है, वो देख लो. अगेन इंटरनेट, यूट्यूब, फेक न्यूज. हाउसिंग सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन कैंसिल, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट. किसके वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, कौन सी बॉडी है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है. चलो नेक्स्ट. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज. नाउ बिफोर आई टेल यू अबाउट हाउ टू रीड एडिटोरियल पेज, आई वांट टू टेल यू दैट अभी क्या है ना, लोगों को लगता है कि एडिटोरियल पेज जो है या एडिटोरियल में जो आर्टिकल्स आते हैं दे कंसिडर इट एज अ बाइबल, कि भाई इसको तो पढ़ना ही है, ए से लेके जेड तक पढ़ना ही है. डोंट कमिट दिस मिस्टेक. Even there are many articles in the editorial page which are not at all relevant from the examination perspective. Yes, more or less articles important होते हैं इस पेज के, लेकिन बहुत दिन ऐसा मिलेगा आपको कि जिसमें कुछ एक या दो आर्टिकल्स जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. तो उसको पढ़ के अपना समय व्यस्त मत करो. डोंट वेस्ट योर टाइम. ठीक है, और ये कब पता चलेगा आपको? अगेन आई एम टेलिंग यू शुड नो द सिलेबस. द सिलेबस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुड ऑल्सो, यू शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 से लेकर 2020 तक कौन कौन से क्वेश्चन आए, बार गो थ्रू दोस क्वेश्चंस. ठीक है, बार सिलेबस देखो, तभी जाके जो है आप अपना समय बचा सकते हो. ठीक है, और मोर और लेस स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं. उनको लगता है ठीक है, एक बार सिलेबस देख लिया है, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, हो गया. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, इफ यू गो थ्रू द सिलेबस एवरी डे, यू शुड गो थ्रू सिलेबस एटलीस्ट वंस. दिस पर्टिकुलर थिंग विल कीप यू ऑन ट्रैक. ठीक है, ये आपको बताएगा कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या जा रही हूं या नहीं. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सिलेबस पेस्ट कर दो अपने हॉल में, जहां पे रूम में अपने जहां पे पढ़ते हो, एंड गो थ्रू द सिलेबस एंड ट्राई टू लिंक दैट सिलेबस विद द न्यूज. दिस इज वेरी, ये धीरे धीरे आएगा. अगर आप बिगिनर हो तो धीरे धीरे ये चीज आप में डेवलप होगी. ठीक है, 1-2 महीने तक थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने आप ये चीजें डेवलप होगी. ठीक है, सो फर्स्ट इज अर्बन विजन्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन. गवर्नमेंट ने किस तरह से मेट्रो सर्विसेज के लिए जो है बजट में अलोकेशंस किए, सो ऑन सो फोर्थ. दिस क्वेश्चन इज अबाउट अर्बनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन, एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड व्हाट मोर गवर्नमेंट शुड डू. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके आप नोट्स भी बना सकते हो. ठीक है,
और मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि नोट्स बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन बनाओ, एवरनोट में बनाओ, पीपीटीज बनाओ, एमएस वर्ड में बनाओ, जो जिसमें आप बेहतर हो, बिकॉज दे आर वेरी इजी टू अपडेट। अब देखो ये जो है ना ऑल टू प्ले फॉर, ये इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज अभी शुरू होने वाला है कल से, उसके ऊपर है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज के बारे में बात किया कि क्या है क्या नहीं है कैसे होगा, नॉट इंपॉर्टेंट। Next, weighing on the Biden's presidency. Now, this is important as far as foreign policy is concerned. What can be the possible impact of the Joe Biden's election as a president on India's foreign policy? What are the options? So, this is an article published by M.K. Narayan, who was a former नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, देखो ना ये डिप्लोमेसी क्या है ना, टाइज विद यूरोप, वेस्ट एशिया, ठीक है। तो आईआर का जो पार्ट है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन मेंस, उसके लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ठीक है। तो इसको सही से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, इसके नोट्स भी बनाओ, सारे नोट्स बना मतलब सारी चीजें मत लिखो, 3 या 4 पॉइंट लिख दो कि ऑथर का मेन पॉइंट क्या है, ठीक है, फाइन। Next is no vaccine nationalism, yes to global cooperation. Again, this is very important. This is again important from the perspective of international relations. ठीक है, India is a rising power. About vaccine diplomacy, how India has helped or how India is helping other countries in meeting their vaccine requirement. ठीक है, तो इस तरह से, and how vaccine export of vaccines is helping India to earn immense goodwill. ठीक है, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर, लाइक इकोनॉमिक पावर एज वेल एज सॉफ्ट पावर, ठीक है। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये लेटर्स टू एडिटर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। कुछ जो इसमें जो कुछ लेटर्स आते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इसमें दिए होते हैं, तो क्विकली जो है, और कुछ जो लोग हैं वो काफी पॉलिटिकल लिख देते हैं, तो उसके ऊपर इग्नोर करो, लेकिन क्विकली इसके थ्रू जाओ, क्योंकि 1 या 2-3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे एडिटोरियल, मैं अगर कोई पर्सन हूं, ठीक है, और मुझे पर्टिकुलर इशू के ऊपर आर्ग्यूमेंट देना है, देन ओनली आई विल राइट अ लेटर टू द हिंदू, एंड द हिंदू विल पब्लिश ओनली दैट पर्टिकुलर थिंग विच इट फील्स दैट यस इट हैज सम रिलेवेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको इग्नोर मत करो, पढ़ो, लेकिन ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ठीक है, फाइन। So out of this page, three articles are important, one is not important. तो मैंने ये इसको ना पढ़ के मैंने अपना टाइम बचाया, ठीक है। हाँ, मैं भला क्रिकेट का, मैं पर्सनल लाइफ में मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है क्रिकेट के न्यूज पढ़ने में, बट नो, एक्सरसाइज योर कंट्रोल, डोंट फॉल प्रे टू ऑल दिस इंड्यूसमेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मजा आएगा यार, पढ़ लेते हैं, बहुत पढ़ लिया, आप थोड़ा इस पे भी ध्यान देते नहीं। सी, द रीजन स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर विद इन 1 hour इज दिस, because they read that which is not important, which is not relevant, and that which makes them feel very good. ऐसा नहीं है, ठीक है। डोंट रीड, इंटरनेट में पढ़ रहे चलो क्या चल रहा है, किसका क्या हो रहा है, नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कंट्रोल शिफ्टिंग सैंड्स एंड द ओवाईसी इफेक्ट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है ये रिलेटेड टू नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम, हाउ द रीजनल पार्टीज आर राइजिंग एंड हाउ दे आर इम्पैक्टिंग द नेशनल पार्टीज, इसके ऊपर है फेडरलिज्म, हाउ इट इज इंपैक्टिंग सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर आया हुआ है कि ये किस तरह से राइज हो रहा है, किस तरह से इसका इंपॉर्टेंस है, नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 मिनट में इसको खत्म कर दो, ठीक है। टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ इज डायरेक्टली मेंशन्ड इन द सिलेबस, सो रीड दिस। क्या क्या इश्यूज है इसमें, कोई डेटा मिल रहा है क्या आपको, कौन कौन से मॉडल्स है, ठीक है। देखो इसमें स्कीम्स के बारे में बात किया गया है, ये देखो स्कीम के बारे में बात किया है, देखो आई विल शो यू। नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड विच हैज बीन प्रपोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये बहुत सारी चीजें, फिर यहाँ पे देखो ये डेटा मिल रहा है आपको कि स्टडी बाय स्विस इंस्टीट्यूट पब्लिश इन न्यू बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक सर्विस इंडेक्स, इट फाउंड दैट ग्लोबली 20% ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव फ्राजाइल इकोसिस्टम. So while writing about, if there is a question on ecosystem, India's approach, India's vulnerability, you can use this data. You can use this fact to enrich your answer. ठीक है, to provide depth to your answer. ठीक है, so focus on data and other issues. ठीक है, smart walls for Indian borders. Again, this is important because security, internal security, terrorism, these are all external security challenges, so on and so forth. Cross-border terrorism, cross-border infiltration, ठीक है, cross-border crimes, ठीक है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग,
ठीक है, स्मगलिंग ऑफ वेपन्स, ठीक है, मनी लॉन्ड्र सॉरी फेक करेंसी, स्मगलिंग ऑफ फेक करेंसी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, दीज आर द इश्यूज विच आर रिलेटेड टू बॉर्डर, है ना। तो आपको किस तरह से बॉर्डर मैनेजमेंट किस तरह से करना है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो हाउ यू कैन यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू इरेक्ट स्मार्ट बॉर्डर्स रादर देन फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल्स, ठीक है। अब ये पेज है ना फ्रॉम दी आर्काइव्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर इट, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको डेटा मिलेगा, तो वो डेटा को नोट डाउन करो, पर्टिकुलर टॉपिक देखो कि कौन सा टॉपिक है और उसके ऊपर आप जो है इसको नोट डाउन करो, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात किया है इसमें, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगेन आगे पॉलिटिकल इशू, महापंचायत सीक रिपील ऑफ फार्म लॉस, अगेन सेम महापंचायत फार्म लॉस, ठीक है। HAL गेट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर 83 LCA इन लाइट कॉम्बैक्ट एयर पार्क, क्या होते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर आप फोकस करते, बाकी प्योरली इकोनॉमिक न्यूज है ये, ठीक है, फाइन। BEL मेक्स मॉड्यूल्स फॉर रडार ऑन राफेल्स, राफाल नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट। नो इनफॉर्मल टॉक्स विद फार यूनियंस, नॉट इंपॉर्टेंट। शिव शंकर गेट्स बेल इन डॉलर स्मगलिंग केस, नो, इसमें क्या है, स्मगलिंग इज एन इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है। कौन सा एक्ट है, एक्ट में क्या पनिशमेंट है, ठीक है, कुछ पनिशमेंट के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन कौन सा एक्ट है और उसमें कौन कौन से ऑफेंसेस, व्हाई स्मगलिंग इज प्रॉब्लम, ठीक है। और व्हाई व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन स्मगलिंग यू कैन कोट सम एग्जांपल्स, ठीक है, दो यू डोंट हैव टू मेंशन द नेम ऑफ पर्सन और पॉलिटिकल पर्सन, गलती मत करना, आंसर में कभी भी पॉलिटिशियंस का नाम नहीं लिखना होता है, किसी भी नॉन एकेडमिक पर्सन का नाम नहीं लिखना होता है। हाँ, सिविल सोसाइटी मेंबर है, स्कॉलर है, ठीक है, ऑथर है किसी बुक का, उसके बारे में लिख सकते हो, डोंट मेंशन पर्संस, पॉलिटिकल पर्संस। द TDD टू बिल्ड पद्मावती टेम्पल इन चेन्नई, नॉट इंपॉर्टेंट। न्यूबॉर्न मॉल टू डेथ बाय डॉग्स, कुत्ते ने न्यूबॉर्न को काट लिया, जो भी, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। नो गवर्नमेंट नोटिस, तो अगेन दिस इज फ्रॉम फर्स्ट पेज। MP takes Andhra temple attack, not important. Jail inmates get facilities for a price. Now this is important because how the criminals, how the convicted criminals are using, how they are indulging in corrupt practices to get all these avail services, और कहीं ना कहीं इसमें क्राइम भी होता है, तो प्रिजन रिफॉर्म्स, हाँ, अगेन इट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बस इतना है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। SC रिफ्यूजेस टू इंटरव्यू, ये पहले पेज से है। वोटर्स ऑफ केरला कॉट बिटवीन CPI-M एंड कांग्रेस, नो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप ये देखो कि इसमें कौन कौन, क्यों वोटर्स कंफ्यूज्ड है, वोटर्स वोट करते समय कौन से इश्यूज पे हाईलाइट कर रहे हैं, क्या वो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्या वो कास्ट बेस्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्या वो रीजनल इश्यूज पे फोकस कर रहे हैं या नेशनल इश्यूज पे फोकस कर रहे हैं, क्यों कंफ्यूज है, तो वो इश्यूज पे आप फोकस देख सकते हैं, बट मोर और लेस नॉट मच इंपॉर्टेंट। तेलंगाना शेफर्ड्स ऑर्गन्स गिव न्यू लीज टू लाइफ टू 5, नो, नॉट इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कभी कभी ये छोटे छोटे इन ब्रीफ वाले होते हैं ना, स्पेशली ऑन फर्स्ट पेज, वो इंपॉर्टेंट होते हैं कभी कभी, तो उसको इग्नोर मत करना कि ये छोटा न्यूज है, क्या मतलब है, नहीं, जस्ट देखना, हेडलाइन पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो ये मर्डर हो गया, ये हो गया, नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, लोकसभा डिस्टर्बेड ओवर फार्म लॉस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, और इसमें आपको बहुत सारे व्यूज पता चल जाएंगे ऑपोजिशन पार्टीज के, व्हाई ऑपोजिशन पार्टीज आर प्रोटेस्टिंग ओवर फार्म लॉस, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 0 आवर के बारे में लिखा हुआ है, क्या है 0 आवर, ठीक है, क्या MPs के क्या क्या पॉइंट्स है। देन अगेन डोंट मेक फार्म लॉस अ प्रेस्टीज इशू, अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या व्यूज है, किस तरह से जो है अपोजिशन पार्टी जो है किस तरह से अटैक कर रही है, क्वेश्चन आवर और 0 आवर है क्या, ठीक है, एंड हाउ दे आर इंपॉर्टेंट, हाउ क्वेश्चन आवर एंड 0 आवर दे आर इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको इश्यूज को देखना है, तो द मोमेंट यू स्टडी अबाउट क्वेश्चन आवर एंड 0 आवर, आपको ये समझना है कि हाँ यार सिग्निफिकेंस कैसा है, कि फार्म लॉस के ऊपर इन्होंने फोर्स किया कि हाँ वी शुड हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन इन द पार्लियामेंट ओवर दिस पर्टिकुलर इशू, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इंडिया फ्लेस कमेंट्स बाय सेलिब्रिटीज, नॉट इंपॉर्टेंट। टेक क्विक एक्शन एज सिचुएशन इज डेंजरस, नॉट इंपॉर्टेंट। राहुल गांधी क्या कह रहा है, क्या मतलब है, ठीक है। राहुल इज स्प्रेडिंग फेक नैरेटिव, दिस इज प्योरली नाउ संबित पात्रा, नाउ ऑल ऑफ अस नो, if you want to know, if you want to read about views of संबित पात्रा, you are surely wasting your time, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज ऑल ऑफ अस वी हैव सीन हाउ ही हाउ ही शाउट्स एट द डिबेट, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आई मीन आई डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रज अगेंस्ट एनी संबित पात्रा और अदर, बट आई डोंट फील कि उसको सुन के मुझे कुछ नया कुछ पता चले, ठीक है। इट्स प्योरली पॉलिटिकल पर्सन, नॉट इंपॉर्टेंट। नो इंटरनेट येट एट दिल्ली बॉर्डर्स,
कोई मतलब नहीं है। हाँ, इंटरनेट सस्पेंशन जो है, जो इंटरनेट सस्पेंशन जो किया है वो गवर्नमेंट ने कौन से एक्ट के अंदर किया है, ये प्रीलिम्स के लिए ये इंफॉर्मेशन है। तो यहां पे लिखा हुआ है, देखो यहां पे लिखा हुआ है, देखो, मिनिस्ट्री हैज इन्वोक्ड द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 of Indian Telegraph Act 1885 to suspend internet. Now this particular paragraph is very important कि टेलीग्राफ एक्ट के अंदर जो है 2017 में रूल्स लाए गए और रूल्स के अंदर जो है ये लिखा गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्रिटिकली एनालाइज दिस पर्टिकुलर प्रोविजन और दिस पर्टिकुलर रूल ऑफ इंटरनेट टेलीग्राफ एक्ट 1885। डू यू थिंक दैट इट इज अ वायोलेशन ऑफ राइट टू इंटरनेट और डू यू थिंक दैट इट इज अ वायोलेशन ऑफ सिविल राइट्स? इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये प्रोविजंस ऑफ एक्ट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप न्यूज पढ़ते हो ना, तो कोई एक्ट है क्या, इस एक्ट में किस पर्टिकुलर न्यूज में किसी एक्ट के बारे में बात किया है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है, कोई डेटा मिल रहा है मुझे, ठीक है, कोई पॉलिसी है, कोई प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, स्कीम है, उसको अगर वो है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें सिर्फ एक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एससी डिक्लाइंस प्ली ऑन रिपब्लिक डे वायलेंस, नॉट इंपॉर्टेंट। ब्लॉकेड एट दिल्ली बॉर्डर्स इनह्यूमन, नॉट इंपॉर्टेंट। ये प्योरली पॉलिटिकल है, सीपीआईएम क्या कह रहा है, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट इज थरूर जर्नलिस्ट मूव एससी अगेंस्ट एफआईआर, अगेन सिविल सोसाइटी ग्रुप्स and government, how government is taking action against civil society members। ये सेम थीम बहुत सालों से, 3-4 सालों से सेम थीम जो है ये वापस आ रही है कि गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, ठीक है। बट नाउ यू शुड बी कॉशन, यू शुड बी आई मीन लेट मी कॉशन यू कि द हिंदू में हमेशा फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना कि किस तरह से कहीं ना कहीं कभी कभी जो है ये सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं दे क्रॉस that Lakshman Rekha, they cross that border, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें हमेशा गवर्नमेंट ही गलत होता है, जरूरी नहीं है, या ऐसा नहीं कि हमेशा सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ही गलत होते हैं। यू हैव टू लुक एट द इशू फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव एंड टेक द बैलेंस स्टैंड। अबैंडन फार्म रिफॉर्म लॉस, एकेडमिशियंस, अगेन सेम फार्मर्स लॉस के ऊपर क्या है, क्या व्यूज है एकेडमिशियंस का, ये ज्यादा अगेन सेम सी कितनी सारी चीजें रिपीट हो रही है ना। Then 10. Now this is international page. Sri Lanka's ECT move unilateral. Now this is very important. This news is related to tripartite agreement signed between India, Japan, and Sri Lanka over construction of East Coast terminal. ठीक है, लेकिन because of the protest by port workers, Sri Lankan government have unilaterally decided to develop that East Coast terminal on its own. They have decided not to involve foreign investment from India and Japan, ठीक है, because of the protesters, ठीक है। तो ये how it can influence India Sri Lanka relations, ठीक है। What is the problem, what can be the possible solution, so on and so forth। So in that case, India's relationship with neighboring countries, Sri Lanka is our neighbor, so in that context this particular news becomes very important। Delayed second Oxford dose helps, not important, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। Then DMK asked PM to speak on fishermen deaths. Again, this is an issue, fisherman issue. The fishermen of India and Sri Lanka, it has been seen that they cross respective boundaries for fishing. ठीक है, एंड दैट लीड्स टू वायलेंस, दैट लीड्स टू अरेस्टिंग ऑफ फिशरमैन फ्रॉम ईच कंट्रीज, ठीक है। तो ये फिशरमैन का जो है इशू काफी इट्स अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, अगेन इट बिकम्स एन इशू। तो क्या दोनों कंट्रीज का क्या कहना है, क्या इसके ऊपर दोनों कंट्रीज ने कोई अग्रीमेंट साइन की है, क्या है अग्रीमेंट वो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एज फार एज इंडिया श्रीलंका इशूज आर कंसर्न, ठीक है। Then no accurate data on Rohingyas, again this is important, illegal immigrants, internal security, cross border infiltration, इससे related important। तो ये गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। 183 स्टिल इन डिटेंशन इन JNK, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, डिटेन हुआ है। बैंड जमात ए इलमी चीफ रिमेन्स इन जेल, नॉट इंपॉर्टेंट। ACJ इनवाइट्स एंट्रीज फॉर जर्नलिज्म अवार्ड्स, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एशियन स्कूल ऑफ जर्नल, किसको अवार्ड मिलेगा, क्या मिलेगा,
ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, तो इसीलिए कौन सी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करोगे वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो जर्नलिज्म के लिए प्रिपेयर करते हो, तो उसमें पूछा जाए कि एशियन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड जो है वो होता क्या है, कौन देता है, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो यूपीएससी में अगर आप प्रीलिम्स में देखोगे, सो दे डोंट आस्क, यूपीएससी डोंट आस्क फैक्चुअल क्वेश्चंस लाइक हु गॉट दिस अवार्ड, हु गिव्स दिस अवार्ड, ठीक है, और कौन है कंपनी का सीईओ, कौन है किसी कंपनी का, किसी बैंक का एमडी कौन है, चेयरपर्सन कौन है। यूपीएससी ये क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछता है इस तरह के। ठीक है, इंडिया का कैप्टन कौन है, ये भारत रत्न किसको मिला इस साल, ऑस्कर किसको मिला, हाँ, नोबेल प्राइज किसको मिला, नोबेल प्राइज किसको मिला इंपॉर्टेंट नहीं है, नोबेल प्राइज किसके लिए मिला, कौन से टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने के लिए मिला, उसका इंपैक्ट क्या था, ये इशू इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि इस साल का जो नोबेल प्राइज है इन फिजिक्स या मेडिसिन किसको मिला है, व्हाट इज द नेम, कौन से कंट्री से है। ये बाकी एग्जाम के लिए हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये कब पता चलेगा आपको, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तब। Then again, collection of DNA samples will lead to misuse. ये important है because this question is on DNA technology use and application regulation bill 2019. See, if you look at the previous year questions, बहुत सारे questions आते हैं acts और laws से related. ठीक है, तो in that context this becomes very important. ये पास होके एक्ट बन जाएगा, फिर यूपीएससी पूछ सकता है कि एक्ट के में प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या वीकनेस है, और उसको सजेस्ट करो किस तरह से इसका इंप्रूवमेंट, इसका फंक्शनिंग हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगेन ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है, मदन लोकुर ने कहा है उसके सामने। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर बिल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अबाउट पर्टिकुलर बिल। ठीक है, और ये बहुत दिनों से ये न्यूज में आ रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट डेटा ऑन डॉक्टर डेथ्स इनकरेक्ट, छोड़ो इसको। प्रवीण सिन्हा टेक्स ओवर सीबीआई इंटरिम चीफ, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सीबीआई का चीफ कौन है, आईबी का चीफ कौन है, बाकी एग्जाम में पूछ सकते हैं, हमारे ये वाले यूपीएससी में एग्जाम में नहीं पूछता ये। प्लीज सिक्स टू प्रोब इनटू रोल ऑफ आरबीआई ऑफिशियल्स इन बैंक स्कैम, यस ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो ये अलग अलग एक्ट है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, क्या इशू है। ठीक है, हाँ, आरबीआई ऑफिशियल्स किस तरह से बैंक स्कैम्स में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसको वायलेट करते हैं। सो आरबीआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी, हाँ, सो एंड इट इज मेंशन इन द सिलेबस, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन ज्यादा फॉर्डर नहीं है, बस एक्ट्स के बारे में लिखा है, क्या क्या प्रोविजंस है। ठीक है, फाइन। देन दिल्ली हाईकोर्ट 6 रिस्पॉन्स फ्रॉम व्हाट्सएप, नॉट इंपॉर्टेंट। बीजेपी टू लॉन्च यात्रास अहेड ऑफ बंगाल पोल, नाउ दिस इज प्योरली पॉलिटिकल ग्रुप न्यूज। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि हर पॉलिटिकल न्यूज जो है वो यूजलेस होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत बार ऐसे पॉलिटिकल न्यूज में कुछ एक्ट्स के बारे में बात किया जाता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो दोज न्यूज बिकम इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइन। तो देखो किस तरह से स्मार्टली में एलिमिनेट करो। शोकेस, आई थिंक इट्स डन, यस, दिस इज द लास्ट पेज, राइट, यस। बाकी ये शोकेस पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो सी हाउ स्मार्टली आई हैव क्विकली आई हैव रेड द हेडलाइन, क्विकली आई हैव गॉन थ्रू द कंटेंट क्विकली, और उसमें मैंने डिसाइड किया कि इसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ठीक है, और ये इस तरह से आप अपना समय बचा सकते हो न्यूज़पेपर पढ़ने में। ठीक है, सो यू नो हैविंग सेड दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू नो फॉर द beginners might take 2.5 hours at the beginning. At the outset it might be very difficult for you to complete paper in 1 hour. It will not be fair on my part to expect the beginners to complete paper in 1 hour. Okay, yes, initially you can take time. For after 2-3 months you should reduce your, I mean it will automatically, your time will automatically reduce to 1 hour. But if it is not reducing, 2-3 महीने के बाद भी अगर आपको 2 घंटे 3 घंटे लग रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, it means that you are not on right direction. या तो फिर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हो न्यूज़पेपर के, या तो फिर आप फालतू की चीजें आप पढ़ रहे हो। ठीक है, शुरुआत में 2-2.5 घंटा हो सकता है, किसी की वोकेबलरी नहीं होती है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, सोशल साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के बारे में पता नहीं है, कमिटीज़ के बारे में पता नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में पता नहीं है, तो हो सकता है उसको थोड़ा समय लगे। लेकिन 3 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद आप बहुत सारे इशूज रिपीटेड होने लगते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें समय कम होना चाहिए। सो ऑन एन एवरेज यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 1 hour. Let me repeat this, you should not spend more than 1 hour 15 minutes on newspaper, because there are other issues as well. Alright, so having said that, I will end this lecture. Okay, before I end, I just want to tell you that you know, प्लीज जो भी आप पढ़ रहे हो ना,
Don't write everything, especially for the beginners, for because beginners will feel that everything is important, so they will go on writing everything. And if you will read your notes after 3 months, you will laugh at yourself कि यार मैं क्या क्या लिखता था. ठीक है. So please, initially, please don't write detailed notes. ठीक है. फॉर इनिशियल 2 months डोंट राइट डिटेल नोट्स, जस्ट इशू लिखो और 2-3 पॉइंट्स लिख दो उसके बारे में, दैट्स इट. ठीक है. ऑलराइट, सो विद दिस आई एंड माय लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड ऑल द बेस्ट.